Today we are going to discuss, of course you all might have prepared this topic quadratic equations, सभी ने अपनी तैयारी कर ली होगी. Now today I am going to tell you particularly how to study this topic from examination point of view. See, for this year 2021, if you have seen the syllabus, he says equations reducible to quadratic form के वर्ड प्रॉब्लम्स को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा सब आएगा. तो इसमें क्या क्या आएगा वो देखने के लिए या कितने मार्क्स तक आ सकता है वो देखने के लिए मैंने CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 को निकाला. तो देखने के बाद व्हाट कंक्लूजन आई हैव कम टू नो दैट, इसे ऐसे लगता है कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क का एक ऑप्शन में आ रहा है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो टोटल 7 मार्क्स तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली may come for 7 marks or even sometimes plus or minus is possible. So when 7 marks आ रहा है तो 7 marks के अंदर और क्या आ सकता है, what else can come in 7 marks, तो we are going to study in deep. तो जो as per the जो रुझान हमको CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से मिल रहे हैं उसके मुताबिक एक क्वेश्चन गारंटी आ रहा है इसके ऊपर, व्हाट इज़ इट, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, और एक क्वेश्चन आ रहा है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और एक क्वेश्चन आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर. तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आप जानते हो कि इसके फॉर्मूले आप लिख के रख दीजिए. व्हाट इज़ दैट नेचर ऑफ रूट्स का आप क्या करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है कि राइट ऑल द नेचर ऑफ रूट्स इन वन साइड ऑफ अ नोटबुक. फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नो रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स. तो इस तरह से आप क्या करो, लिख के रख दीजिए ताकि एक क्वेश्चन उसके ऊपर गारंटी आ रहा है. प्रॉब्लम्स को मैं एक साथ करूंगा क्योंकि वो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो वो ऐसे हैं कि 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3ax² माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. If you want to solve these two, because they are of the same type, I would like to consider under same category. So what I'll write here is ax² plus bx plus c is equal to 0. This also ax² plus bx plus c is equal to 0. So both I am comparing here. So a is equal to 9, b is equal to 6k, c is equal to 4. c is equal to 4. This is the first equation. Here I am taking the second equation. Same thing we will have to do here. A is equal to 3a, b is equal to minus 6, b is equal to minus 6, c is equal to 10. c is equal to 10. Now what you want is equal roots. What is the condition for equal roots? Condition for equal roots is what? Discriminant is equal to 0. For this problem what he says, equal roots वो कह रहा है. तो equal roots के लिए condition क्या है? Discriminant is 0. That means what? b squared minus 4ac is equal to 0. b squared यानी क्या है? 4a, a यानी 9, c is equal to 0. So b squared है, b squared का मतलब है 6k, a का मतलब है 9 और c का मतलब here is 4. So this becomes how much? 36k squared minus 4 9s are 36 into 4 is 144 is equal to 0. So 36k squared is equal to 144. So k squared is equal to 144 divided by 36. So that's equal to how much? 4. So k is equal to square root of 4 and that is equal to plus or minus 2. So that's how you can solve this problem. Now if you have to talk about this problem, in this problem what you do is, he says for no real roots, for no real root discriminant should be less than 0. अगर no real roots है तो discriminant क्या होता है? Less than 0 होता है. यानी what? b squared minus 4ac should be less than 0. And b is how much? Minus 6 square 4 into a into c less than 0. b is how much? Minus 6 square, a is 3a, c is A is how much? A is 3a,
b is -6, c is 1. So b square means -6 square, 4 into a is 3a and c is how much? 1. c is 1, it's not 10. So this becomes how much? 36 minus 12a. 36 minus 12a is equal to 0. Or I can do like this, 36 less than this 12a, I will transpose it to right side. This becomes what? Plus 12a. So 36 divided by 12 greater than a is greater than that. That means what? देगा आपको. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ये तो डायरेक्ट सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. इसको कैसे करोगे आप? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अगर है इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आना चाहिए 10 और प्लस और माइनस करने पर 7 आना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0. आप जानते हो 5 प्लस 2 इज 7, 5 इंटू 2 इज 10x स्क्वायर. इसको इफ़ यू सॉल्व इट, इफ़ यू सॉल्व दिस वन, देन x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5, 2 इंटू ब्रैकेट x plus 5. So x plus 5 into x plus 2 is equal to 0, or I can say that x is equal to minus 5 or x is equal to minus 2. These two are the possible solutions for this. इसके लिए solution क्या है? x is equal to minus 5, x is equal to minus 2. यानी एक क्वेश्चन nature of roots लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर आएगा. Now let us see how we can. Question reads, a motor boat covers a distance of 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में एक गारंटी आएगा. अगर आप मुझे पूछते हो कि इस प्रॉब्लम का एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आई विल से 7 out of 10 टाइम्स ये आपके इस एग्ज़ाम में आ सकता है. एंड द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम इज फाइंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर सोल्यूशन. वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ द फाइंड द है ना, इसीलिए इसको आप क्या कीजिए, लास्ट सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस आप बनाइए. कैसे? लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, let the speed of the boat in still water bx and speed stream b. हाउ टू सॉल्व इट, क्योंकि ये 5 मार्क के लिए पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आएगा. लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. पहले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और एक प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का रह गया था, जो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ. और जहाँ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 km अपस्ट्रीम. देखिए, जब अपस्ट्रीम जाएगा यानी पानी के खिलाफ जाएगा, तो पानी के खिलाफ जाएगा तो स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. पानी के खिलाफ जाएगा तो बोट का स्पीड में से पानी का स्पीड आपको माइनस करना पड़ेगा. तो व्हाट आई डू इज स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. और बच्चों, एक प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है. भले ही इस क्वेश्चन पेपर में वो ना आया हो, मगर आपको क्वेश्चन पेपर में वो पूछने की पूरी गुंजाइश है. तो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होगा बच्चों? पानी के साथ. जब भी पानी के साथ कोई चीज़ जाती है तो पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड भी क्या होगा? ऐड होगा. अब आप देखिए, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16, कंडीशन नंबर 1 है, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर. टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो यहाँ पर आप देखिए,
डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है 16 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम, वो बता रहा है, तो अपस्ट्रीम यानी 16 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, 16 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी 24 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। इन हाउ मेनी आवर्स? इन 6 आवर्स। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? इन द सेम टाइम यानी 6 ही घंटे में इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बच्चों अपस्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी 36 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 6। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू, 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। इफ यू पुट इन दिस, व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट? आप देखो 16u plus 24v is equal to 6. This is my third equation. What is it? 16u plus 24v is equal to 6v. इसको सॉल्व कीजिए आप, 12u plus 36v is equal to 6. This is my fourth equation. Now what you have to make is, you have to make the coefficients of either u equal or you have to make the coefficients of v equal. Suppose if I decide to make the coefficient of u equal, ये 16 है, ये 12 है. What is the LCM of 16 and 12? Let us try to do it here separately. 16 और 12 का LCM हम ले लेते हैं यहाँ पर. 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, again 2 2 जा 4, 3 as it is. तो आप LCM इसका होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 48 के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4. इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणाकार करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणाकार करना पड़ेगा. तो 3 इंटू 6 इज 48u प्लस 3 इंटू 24 इज 72v एंड 3 इंटू 6 इज 18. वहाँ पर आप 4 से इंटू करोगे तो ये होगा 48u प्लस 4 इंटू 6 इज 144v एंड 4 इंटू 6 इज हाउ मच? 24. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, ये कैंसिल होगा. 72 माइनस 44, 72 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 72v, माइनस 72v, और ये होगा 24 माइनस 18 एंड 24 माइनस 18 इज minus 6. 6 by minus 72 and that's equal to 1 by 12. 1 by 12. You put this value of, you put the value of v is equal to 1 by 12 in this equation. इसके अंदर आप डालिए 16u plus 12 into v की वैल्यू है 1 by 12 is equal to 6. तो ये 12 cancels with 12. 16u plus 16u plus 24 into 1 by 12 is equal to 6. So this 12 1s are 12, 12 2s are 24. 16u is equal to, 16u is equal to, ये 2 उधर चला जाएगा तो 4 होगा, और u is equal to 16 उधर चला जाएगा तो 1 by 16, यानी u is equal to how much? 1 by 4. v is equal to 1 by 12, u is equal to 1 by 4. अब फिर से एक बार आप रिपुट कीजिए. u मीन्स x माइनस वाई है, 1 बाय एक्स माइनस वाई. तो आप यहाँ पर v की वैल्यू आप पुट करोगे 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 12, और u है 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 4. आपने क्या किया? v की वैल्यू और u की वैल्यू रिपुट किया. तो इसको आप सॉल्व कीजिए.
x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल होगा बच्चों, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। यू पुट दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू आप इधर डाल दीजिए, तो ये होगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 करोगे बच्चों तो क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के, और ये एग्जाम में इस टाइप के आता है। हमारे अगले वीडियोस में भी हम आपको कुछ और प्रॉब्लम्स बताएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में इंपॉर्टेंट है।